नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ इन नेशनल इंटरेस्ट। क्या पेगासस प्रोपेगेंडा निजता के अधिकार पर निशाना है या केवल भारत की छवि को दुष्प्रचार से खराब करवाना है? द क्वेश्चन इज ओनली दैट इज पेगासस प्रोजेक्ट something that we should be afraid of? Are rights to privacy being hijacked, or is it all a propaganda only to target India's reputation? That is the big question on which we all will focus. And today we have very important guests with us. आज हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण मेहमान जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव जी है, जो कि सांसद है, राज्यसभा के सदस्य हैं और आंध्र प्रदेश से आते हैं। पुराने अवतार में पत्रकार और सेफोलॉजिस्ट भी रहे हैं। हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक पद्मश्री आलोक मेहता जी हैं। वैसे परिचय की कोई जरूरत नहीं है, पर टीवी पत्रकारिता हो, प्रिंट पत्रकारिता हो या रोजमर्रा के जो राजनीतिक मुद्दे हैं उस पर विश्लेषण की बात हो तो इनसे बड़ा नाम आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे सबसे लॉयल पेट्रन सुनील देवधर जी, बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी और आंध्र के इंचार्ज, और इनको पता है कि किस तरीके से ग्लोबल टूलकिट गैंग ऑपरेट करती है। तो आज इनसे भी सुनेंगे कई सारे मुद्दों पर सबसे पहले सवाल जीवीएल नरसिम्हा राव, क्योंकि एक तरीके से आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। सर, आर यू रियली trying to hijack the privacy of these innocent journalists when you are trying to snoop into their phones, or is, as you claim, this entire Pegasus matter a big hoax? नमस्कार शहजाद भाई, आपको और सभी आलोक मेहता जी को और सुनील देवधर जी को नमस्कार। देखिए, इफ देयर इज एनीथिंग बीइंग हाईजैक, इट इज एन अटेम्प्ट टू हाईजैक इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। आई थिंक इफ देयर इज एनीवन ऑन निशाना, the target is the government led by Honorable Prime Minister Modi ji. And this so-called investigation or so-called Snoop Gate or snooping report is nothing but a bahana. I think it's an excuse. It's an attempt to derail India's parliament, because this happens just on the eve of India's parliament monsoon session commencement, and this has been done with clearly the BJP and central leadership, Prime Minister Shri Narendra Modi on target, because a number of people who are involved in this so-called alliance, I think it's nothing but a anti-Modi or hate Modi brigade. Many of them, not just on the Indian side. The Indian side, we know which portal is behind it and what is their reputation, how they tried to tarnish the reputation of our leaders, and then how they really got a flack on their faces when the Supreme Court said Judge Loya's death had nothing to do with any conspiracy. So I think these are, and Amnesty International, which is a key partner in this whole activity, had to leave India because they were indulging in a lot of dubious activities in India. And many of these international publications have an axe to grind with our government. At least the Indian side of the so-called investigative report is an attempt to derail India's parliament on the eve of parliament, because they didn't want the focus of this entire parliament on the real issues that concern the people of this country, including the threat of a possible threat of a third wave of COVID, and a lot of legislation, pro-people legislation that was lined up for this particular session. So a number of names that appear on the list, the Amnesty International itself said, or even the Pegasus journalists, they claim that this having number or appearance of a number on this so-called list of some 60,000-80,000 people does not signify that these numbers were on the tap list. And even the Israel wing of the Amnesty International said that this list had nothing to do with them. So this is a conspiracy which is a manufactured one, and something that had a political undertones or overtones to somehow try and target the BJP. We have seen this happen in the past also. Intolerance brigade. Suddenly, after Modi ji became prime minister, for the next 6 months, you had this India becoming intolerant. That was a story that appeared all over the world, and it disappeared
once the Congress started losing steam. So this is yet another manufactured a story, and they want to derail the focus of the parliament. If anybody genuinely feels his or her phone is being tapped, I'm certainly not one who's scared, because I don't even care if anybody by using criminal means and taps my phone, because there is nothing that we say, nothing that we do. It's only people who indulge in shady activities who possibly fear, and out of their own self-importance. A lot of journalists also think they're too important to be tapped. I think government has better things to do than tap the journalist phones, because most of these people, their chal charitra is known to everybody. There is nothing to really snoop on them. They, if at all the security agencies are tapping a surveillance, putting surveillance on anyone, it has got certainly a national interest, a national security in focus. And I hope the journalists who are claiming to be on the tap list, I don't think they are claiming to be a national threat themselves. And if they do consider themselves to be a national threat, then they should not crib that they are being surveilled upon. Okay, let me go to Alok Mehta ji before I go to Sunil Devdar ji. Sunil Devdar ji के पास मैं जब जाऊंगा तो ग्लोबल टूल किट ऑपरेट करता है, उनसे जरूर पूछूंगा. पर आलोक मेहता जी, एक सवाल दूसरा है. थोड़ा सा मैं आपसे एक अपनी एडिटोरियल हैट पहनने को कहूंगा. यदि आप संपादक होते, क्योंकि 17 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने ये रिपोर्ट को कोऑर्डिनेटेड मैनर में छापा है, जिसे जीवीएल राव कहते हैं कि ये देश की सरकार और देश की संस्थाओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा, एक दुष्प्रचार किया जा रहा है. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनके 2 पॉइंट है. उनका एक पॉइंट ये, वो कहते हैं कि रिपोर्ट में ही लिखा है कि नंबर लिस्ट में होना ये प्रमाण नहीं है, दिस इज नॉट अ प्रूफ दैट यू हैव बीन स्नूप्ड अपॉन. और दूसरा, वो इजराइल की एमनेस्टी का हवाला दे रहे हैं, जिन्होंने कहा कि ये 50,000 नंबर की लिस्ट जो है ये एनएसओ की द्वारा, मतलब एनएसओ जो पेरेंट कंपनी है पेगासस की, उसके द्वारा तो नहीं है, हम इसको डिनाई करते हैं. अगर आप संपादक होते तो क्या आप ऐसी रिपोर्ट, और जो तथ्य सामने है, आपने सारी रिपोर्ट्स पढ़ी है, क्या आप इसको छापते? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? देखिए शहजाद भाई, इसमें ये खबर की बात तो है ही नहीं. मेरा मानना है कि जिन लोगों ने इसको हल्ला मचाया, हमारे जैसे संपादक तो उसका उपयोग, इसलिए आप देखिए ना, स्पेसिफिक उन लोगों ने कहा कि इन लोगों ने आपस एक चैन नेटवर्क बनाया, और ये दुनिया के जिन देशों को जोड़ा गया उनके अखबारों को भी आप आइडेंटिफाई करेंगे. तो जैसे कहते हैं कि जो वो अपने को लिबरल डेमोक्रेट कहें, लेफ्ट ओरिएंटेड कहें, आप चाहे जिस तरह के अखबार के नाम है बाहर भी, और जिनके अपने इंटरेस्ट हैं, वाशिंगटन पोस्ट जहां चाइना का भी पैसा लगा, अभी ताजी रिपोर्ट यदि आपने देखी हो. तो मेरा एक मानना है कि एक तो हम जैसे लोगों को तो पहुंचाएंगे नहीं. यदि संपादक के रूप में देखें, उनको लगता है कि उनको आइडेंटिफाई, चूंकि आपने कहा जो संपादक भारत में भारत के हितों में काम कर रहा है, उसके लिए न भारत की सुरक्षा एजेंसी कुछ करेगी, बाहर की एजेंसियां कर सकती हैं. और इसलिए पहली बात तो यह है कि लिस्ट कहीं कोई, और देखिए सबसे बड़ी बात यह कि जो और भारत के बड़े अखबार के नाम, उनके लोग यदि किसी है भी किसी बड़े अखबार के, तो उनके बारे में कुछ शंकाएं हो सकती है. तो उनको खुद, जैसे कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, थोड़ा खराब शब्द है, बट इवन देन व्हाट आई फील, द नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो वर्किंग अगेंस्ट इंडिया, एंड व्हाट नरसिंह राव जी इनिशियली स्पोक अबाउट इट, कि भाई उनको भारत के लोकतंत्र से ही लगता है, भारत की कोई मजबूत सरकार. इसलिए देखिए, मैं तो पार्टीजन नहीं, मैंने चूंकि पिछले 50 साल में इंदिरा गांधी डे 71 से लेके अभी तक देखा, ये ठीक है, भारत के खिलाफ इवन यूं तो आप कहें कि मल्टीनेशनल्स या दूसरे कई, पहले तो ज्यादा फोर्स ही नहीं होता था, लेकिन एजेंसियां भारत के खिलाफ काम करती थी. वेस्टर्न मीडिया, जबकि मैं वेस्टर्न मीडिया बायस नहीं हूँ. आई वर्क इन जर्मनी फॉर 3 years, आई वर्क विद वॉइस ऑफ अमेरिका, मैं बीबीसी के लिए कंट्रीब्यूट किया, लेकिन मैं उनके बायस भी जानता हूँ. जहां उनके बायस रहे हैं, मैं अपने इंडिया के इंटरेस्ट से बोलता था. तो मेरा मानना है कि उनमें जो आइडेंटिफाई करिए वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसलिए चूंकि नरसिंह राव जी तो और ज्यादा पार्लियामेंट में भी है सक्रिय, आगे भी इसको अपनी सरकारों से कह सकते हैं, सरकार से खास करके. आप यदि हिस्ट्री निकालेंगे तो इन लोगों के चाइना का नक्सल कनेक्शन, देखिए जिस वेबसाइट में नाम फिर भी नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप सब जानते हैं कि उनका क्यों प्रचार करेंगे, लेकिन जो वेबसाइट इसको भारत की कहती है, उनके क्या उन पर नक्सली, उनके परिवार के सदस्य नक्सली संबंध थे हैं, वो उनके चीन, उनकी कितनी यात्राएं हुई, वो अमेरिकन सिटीजन भी कहते हैं. तो देखिए अभी बीच में मैंने एक वीडियो देखा, न्यूज क्लिक का नाम लीजिए आप. न्यूज क्लिक का तो ओपनली आया है, मैं तो वायर की बात भी कर रहा हूँ. देखिए वो, मैं तो उसी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में वो काम किए हैं,
न्यूज क्लिक का तो ओपनली कंपनी का आ गया 30 करोड़ रुपया। भाई कुलदीप नायर, इंद्र मल्होत्रा या इतने जो भारत के एडिटर्स रहे उन लोगों को, उनको तो कोई 30 लाख भी नहीं दिया उस तरह से काम करने के लिए। या अभी भी मैं काम कर रहा हूं, हमें तो कोई 10 लाख नहीं देगा कि आपको करना है, क्योंकि हमें लगेगा हम ऐसा किसी पैसा भी नहीं लेंगे, ना कोई देगा। तो मेरा मानना है कि इन लोगों के वो, अच्छा वो रिकॉर्ड मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, जो वायर के वहाँ कुछ लोग काम करते हैं या न्यूज क्लिक में तो जो सहयोग देते, मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि उनको कौन यूज कर रहा है ये पता नहीं चलता है। जो इंटरनेशनल जो एजेंसीज काम करती हैं भारत में, अखबार वालों, ये कहना ना कि पत्रकारों पर आज हो रहा है, पत्रकार पहले भी CIA तक से लिंक पाए गए, उनको देश से जाना पड़ा। मैं अभी विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी की ताजा घटना में एक तो लिस्ट वेरीफाई नहीं है, एक लिस्ट बनाई गई दिमाग में रख करके, या पहले बालो सरकार, मैं ये भी मान सकता हूँ कि सरकार से भी कोई लीक हुआ हो। भारत में यदि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है, आज पहले भी आपको याद है दूसरे इनकम टैक्स के केसेस में, पेरा के केसेस में, या नक्सली या आतंकवादियों के लिए भारत को जरूरत होती है। तो भारत में भी ऐसी सुरक्षा एजेंसियां करती हैं, तो वो उस पर तो प्रशिक्षण होना नहीं चाहिए। उनका काम ही है कि देखे कि भारत विरोधी कौन ताकतें काम कर रही हैं। एक अमेरिकन सिटीजन जिसके नक्सली संबंध हो, उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया जाए, और माफ कीजिएगा सुनील जी साथ में हैं, चेक कर लें, अडवाणी जी ने उनको बचाया था। अडवाणी जब वो प्रधानमंत्री थे उस सरकार में, उनके पास गया था केस वो, और वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं। अदालत में केस है, इसलिए मैं नाम बोल रहा हूँ। इसलिए ये है कि ऐसे लोगों के साथ दया करने का नतीजा 10 साल बाद सामने आता है। नक्सलियों को मदद करने के लिए पत्रकार के वेश में, डॉक्टर के वेश में, और नॉर्थ ईस्ट में भी मिशनरी के लिए, अभी सुनील जी से आप चर्चा करेंगे तो पता है, मैं तो 83 में मैंने लिखा था दिनमान जैसी टाइम्स ऑफ इंडिया की मैगजीन में कि ईसाई मिशनरियों के नाम पर भी किस तरह से भारत में CIA के एजेंट आते थे, और उसमें चाहे उस समय की सरकारों ने और कहना चाहिए संघ ने भी वहां बड़ा काम किया था, जिसकी वजह से आज पूर्वोत्तर में सरकारें हैं। सुनील जी तो हाल के वर्षों में गए हैं, मैं तो तब से इस बात को जानता हूं, अरुणाचल को लेकर के, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के। तो ये जो तंत्र आया है, ये अभी जो राव साहब ने कहा, देखिए सही बात ये है कि इसके पीछे एक ताकत नहीं है, कई ताकत भारत की मजबूती नहीं देखना चाहती, अर्थव्यवस्था को नहीं देखना चाहती। नरेंद्र मोदी यदि प्रधानमंत्री स्थायित्व वाली सरकार है, वो नहीं देखना चाहती। और मैं तो कह रहा हूँ, हाँ, इंदिरा गांधी को भी नहीं देखना चाहती थी, राजीव गांधी का भी असोसिएशन किया गया। ये तो मैं नहीं मानता कि यदि कोई ऐसा सरकार आ जाए, उसको 425 का बहुमत था। आप ये, मेरा ये मानना है कि इसको इसीलिए पार्टी जब राहुल गांधी बोलते हैं तो इसलिए तकलीफ, गुस्सा आता है कि आपने यदि भारत के विरोधी ताकतों का अपनी पार्टी के तहत भी देखे, प्रतिपक्ष के नाते नहीं, और उनका क्या करने की जरूरत है। हमारा टेलीफोन, जैसा अभी राव साहब ने कहा कि मेरा टेलीफोन टेप करेंगे तो क्या होगा, हम तो खुल के बोलते हैं, यदि आलोचना भी होगी तो हम कहेंगे साहब ये गलती है, ये बीजेपी की गलती है, कांग्रेस की गलती है, या जो लोग ऐसे हैं नेता भी, यदि वो चोरी फॉरेन एक्सचेंज का धंधा नहीं करते, यदि वो कितनी बार जाते हैं सुरक्षा हटा देते हैं, राहुल गांधी उन्होंने खुद हटा दिया, NSG को हटा दिया, और सबको कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, या बाद में उनकी जरूरत उनको नहीं होगी, लेकिन वो सुरक्षा कर्मी को भी विदेश में कहाँ बदल करके चले जाते हैं। क्या उनकी नागरिकता एक है कि नहीं है? तो ऐसे कितने ही लोग, जो लोग हैं, व्यापारी हो सकते हैं, जो इस तरह के धंधे करते हैं, जो गलत करते हैं, जो नक्सलियों को अप्रत्यक्ष रूप से, डिस्क्रिट का जैसा नाम आया, 30 करोड़ रुपया कई कंपनियों के नाम से आया, वो अमेरिका के थ्रू आ रहा है। क्यूबा श्रीलंका कनेक्शन देखिए आप, श्रीलंका, क्यूबा, अमेरिका। तो ये नहीं कह रहा कि अमेरिका हमारे खिलाफ नहीं है, अमेरिका की जनता है, सरकारें नहीं होती, लेकिन कई लोग, जो चीन के लोगों ने इन्वेस्ट वहां कर रखा है, अमेरिका ने भी चीन में इन्वेस्ट किया हुआ है, भारत में किया हुआ है। ये सारे तत्व है जिसकी वजह से भारत की लोकसभा, संसद को नहीं, पूरे लोकतंत्र को कमजोर करने की ताकतें लगी हुई है। ठीक है, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। सुनील जी, आपको शामिल करना चाहता हूं। जो बात आलोक जी कह रहे हैं कुछ हद तक, कि कई सारी ऐसी ताकतें हैं, और चाहे सरकार किसी की भी हो, और इसीलिए शो का नाम इन नेशनल इंटरेस्ट है, किसी एक पार्टी के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे नेशन के इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो आप बताइए सुनील जी, एक रिपोर्ट जिसमें खुद में कई सारी शंकाएं पैदा की जाती है कि नंबर लिस्ट में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि स्नूपिंग हो रही है, ये लिस्ट कहां से आई, इसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर दिए गए हैं। तो फिर केवल और केवल क्योंकि ये एमनेस्टी द्वारा एक संचालित एक पूरा ऑपरेशन है, और वो एमनेस्टी जिसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं, उसके आधार पर भारत पर सवाल खड़ा कर देना कि भारत ही ऐसा कर रहा है। उस लिस्ट में तो कई सारे और भी देशों के नाम थे, क्यों केवल यही निष्कर्ष पर आया गया कि भारत ने ही ये किया, और क्यों एमनेस्टी की बातों पर भरोसा किया जाए?
क्या एमनेस्टी भरोसे लायक संस्था है आपके हिसाब से? शहजाद जी, वास्तविक में आज जो विषय आपने इस इन नेशनल इंटरेस्ट लिया है, ये वास्तविक में गंभीर इन नेशनल इंटरेस्ट है। देखिए, ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी खेलने के लिए गए हुए हैं और मोदी जी सारे देश को बता रहे हैं चीयर इंडिया। और आप अभी देखेंगे पार्लियामेंट में अपोजिशन कांग्रेस लेफ्ट और बाहर में टुकड़े टुकड़े गैंग का क्या स्लोगन है, चीट इंडिया। एक तरफ चीयर इंडिया है और एक तरफ चीट इंडिया है। और ये एक लंबी लड़ाई है। ये लड़ाई जो है ये स्वार्थ में से निकली हुई लड़ाई है। कहीं ना कहीं इन लोगों के स्वार्थ के ऊपर जबरदस्त चोट पहुंची हुई है और इसमें से ये सारा झमेला खड़ा हुआ है। बिल्कुल सही मेहता जी ने बताया कि ये पूर्ण बहुमत की सरकार, पहले तो इनको लगा था कि ये फ्लूक में आ गई, पहले 10 साल के पापों के कारण आ गई, इसमें इनका कुछ नहीं था, अब ये वापस नहीं आएगी। और इसी तरह से एक झूठ फैलाकर, चौकीदार चोर है बोलकर राहुल जी ने एक अपप्रचार चालू किया और मोदी जी ने उसको चैलेंज के नाते उठाया और कहा कि चलो आप बोलते हो चौकीदार चोर है तो मैं कहता हूं मैं हूं चौकीदार। देश की जनता के सामने गए और उन्होंने पहले से अधिक विजय प्राप्त करके अब तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई कि पार्लियामेंट चलेगी और बेहतरीन ढंग से चलेगी। बहुत सारे कानून बनेंगे और हर नया कानून इन लोगों की दुकानें बंद करता जा रहा है। अब ये एमनेस्टी के बारे में जब आप बात करते हैं तब ये कौन सी संस्था है आपको मालूम होना चाहिए कि 2016 में बेंगलुरु में एक इवेंट हुआ था जिसमें भारत विरोधी नारे दिए गए थे और वो जो 2016 का जो बेंगलुरु में इवेंट था उसकी जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है, ये तो कंपनी है, ये एनजीओ कहां से है, ये कंपनी है और इस कंपनी ने वो भारत विरोधी इवेंट आयोजित किया था। इसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। फेरा के अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी। इन्होंने भारत के अंदर अपना फंक्शनिंग बंद कर दिया था। मैं आपको 100 बात की एक बात दिखाना चाहता हूं। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की वेबसाइट पर भारत का नक्शा सारे देशवासी देखे। ये दिखाई दे रहा है ना आपको ठीक से? हाँ बिल्कुल। क्या दिखा रहा है? ये नक्शा देखिए, ये भारत का पूरा जो पाक व्याप्त कश्मीर जिसको कहते हैं, जिसके लिए हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में कहा इसके लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस की सरकारों के समय कश्मीर को लेकर वाद होता था। कांग्रेस के सरकारों के समय भारत के आतंकवाद के जब घटनाएं होती थी, उनके प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, यूएन में चले जाते थे हमारी बात बताने के लिए। वहां हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं था। 370 जाने के बाद, सीएए आने के बाद इमरान खान चला जाता है विदेश में हमारे खिलाफ बात करने के लिए, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये पीओके को भारत से अलग करने वाला, ये अरुणाचल प्रदेश के पूरे हिस्से को इस तरह से इन्होंने दिखाया है कि ये भारत का हिस्सा नहीं है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का चरित्र है। हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो इल्जाम लगा रहा है उसकी विश्वसनीयता क्या है। ये बड़ी बात है। इल्जाम लगाना किसी का भी गणतंत्र में अधिकार है, लेकिन इल्जाम लगाने वाले को पहले उसकी जांच होनी चाहिए। भैया तू कौन है, तुम्हारा चरित्र क्या है, तुम्हारी विश्वसनीयता क्या है, तुम्हारा इंक्लिनेशन क्या है, तुम्हारा ओरिएंटेशन क्या है, तुम्हारी मंशा क्या है, तुम्हारी नीयत क्या है, तुम्हारा इरादा क्या है, कौन से समय पर तुमने इल्जाम लगाया है, उस समय का अर्थ क्या है। इससे सारे डाउट्स क्लियर होते हैं साथियों। और इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्रांस की एक नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉरबिडन स्टोरीज नाम की, ये फॉरबिडन स्टोरीज क्या है, दुनिया भर के जो बेरोजगार पत्रकार है, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के नाम पर, सभी लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के नाम पर जेन्युइन रहते ऐसे नहीं है, कई लोग बेरोजगार रहते हैं, कई लोग जो है कहीं ना कहीं तो टुकड़े ढूंढने वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे लोगों की स्टोरीज लाने वाली है फॉरबिडन स्टोरीज जी, जो एक नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। उसने और इस एमनेस्टी ने मिलकर 17 देश भर की दुनिया के
अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को शामिल कर लिया और उन्होंने जी एक प्रोजेक्ट बनाया जिस प्रोजेक्ट का नाम पेगासस प्रोजेक्ट है। और जी उसमें भारत में उन्होंने द वायर को शामिल कर लिया, जिसके बारे में अभी अभी मेहता जी ने हमको बताया कि ये वायर क्या है, ये न्यूज क्लिक क्या है। 39 करोड़ रुपया किस तरह से चाइना से फंडिंग हुई है द न्यूज क्लिक को, देश जी को बर्बाद करने के लिए, देश को गालियां देने के लिए। ये संबित पात्रा जी ने एक बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी दुनिया को बताया। पिछले ये एक सप्ताह। टूल किट गैंग है, ये नया गैंग जो इमर्ज होकर आया, ये टूल किट गैंग है। एक झूठ का पुलिंदा तैयार करते हैं और फिर इसको लेने वाले कौन है? वो फ्रस्ट्रेट हो गए जो वामपंथी है, जिनका शासन सब जगह खत्म हो चुका है। थोड़ा बहुत वहां पर केरला में बचा है, अदरवाइज त्रिपुरा में तो हम ही लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया था। बंगाल जी में अब दूसरे नाम से एक लेवल अलग लगाकर वही गैंग वहां काम कर रहा है, जो आप देखते हैं किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर अंदर हमारे मंत्री के हाथ से कागज खींचकर उसको फाड़ते हैं और उसको हवा में फेंक देते हैं स्पीकर की ठीक है। तरफ। इतना बड़ा पाप है ना? तो ये जो टूलकिट गैंग है, ये इंटरनेशनल गैंग है। बेरोजगार पत्रकारों की बढ़ी हुई संख्या, जिनके दुकान बंद हो गए हैं, इनके कारनामे क्या थे? इन्होंने रफाल के ऊपर झूठ बोला, इन्होंने देशद्रोह को सही ठहराने का प्रयास किया, पुलवामा को इन्होंने षड्यंत्र कहा, बालाकोट के ऊपर इन्होंने सबूत मांगे, फार्म लॉस के बारे में इन्होंने बरगलाने की कोशिश की, सीएए के ऊपर ये जाकर शाहीन बाग में जाकर बैठे, देश भर में उन्होंने झूठ फैलाया, सेंट्रल विस्ता को मोदी का घर बताया, याकूब को हालात का मारा कहा, रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाना का पाप किया, कुंभ को बदनाम किया। और अभी जब कोविड के काल में वहां पर ईद मनाई गई तो कोर्ट के बताने के बावजूद उसकी निंदा इन लोगों ने नहीं की। तो मेरे ख्याल में ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसने जो किया हुआ आरोप है, इस आरोप के बारे में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विचार और ये करने जो की टाइमिंग है, आवश्यकता ही नहीं है। आपका ये कहना है कि इनकी विश्वसनीयता क्या है और इनकी मंशा क्या है, दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। और इन पत्रकारों के बारे में भी आलोक मेहता जी से जानकारी लेंगे। परंतु जीवीएल राव साहब, मैं आपके पास 1 मिनट के लिए आना चाहता हूं, क्योंकि मामला ये है कि इस पूरे मामले को लेकर 2 बड़ी चीजें हुई। एक तो जैसे सुनील जी बता रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरीके का बर्ताव पार्लियामेंट के भीतर किया, उसी सदन में जिसके आप सदस्य हैं, क्या पार्लियामेंट को इस मुद्दे पर इस तरीके से तमाशे का अड्डा बनाना, ये मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने ऐसा किया, क्या ये सही था? और दूसरी बात, आप ही के साथी हैं पार्लियामेंट में, पार्टी में नहीं, राहुल गांधी, वो कहते हैं मेरे फोन टैप हो रहे हैं, सारे फोन टैप है, मुझे आईबी के अफसर ने बताया है कि मेरा फोन टैप पर है। ये बड़ा गंभीर आरोप है जीवीएल नरसिम्हा राव जी। तो अगर इतना गंभीर आरोप है तो क्या कोई सुझाव देंगे आप राहुल गांधी को कि वो जाकर शिकायत करे, क्योंकि आरोप बड़े गंभीर लगा रहे हैं वहां पर? या शहजाद जी, ये जो राज्यसभा में जो घटना घटी है, जिसमें एक टीएमसी के सांसद हमारे आईटी मंत्री जब स्टेटमेंट पढ़ रहे थे इसी संदर्भ में, और एक स्टेटमेंट पढ़ने का जो समय होता है, बहुत सरकार का स्टेटमेंट, यानी सरकार का इस विषय पर सरकार का क्या सफाई है, क्या सरकार क्या जानकारी देश को देना चाहती है, ये महत्वपूर्ण है। आप हल्ला कर रहे हैं, आप 5-6 दिन से, 1 सप्ताह से हल्ला कर रहे हैं, देश में हल्ला कर रहे हैं, संसद में हल्ला कर रहे हैं। जब मंत्री आपको जवाब देना चाहते हैं, तो जानकारी देना चाहते हैं, तो तसल्ली से सुनना ये आपका दायित्व है। लेकिन उन्होंने वेल में आकर के हंगामा किया, फिर उनके हाथों से छीनकर फाड़ा। उसके बाद कल सुबह उसको उस सदस्य को हाउस से सस्पेंड करने के लिए रेजोल्यूशन सरकार के द्वारा मूव किया गया, और माननीय चेयरमैन साहब ने उसको स्वीकृति दी। तो लेकिन वो उसके बाद भी पूरे दिन भर कल बार बार ये अडजर्न होता रहा सदन, लेकिन वो हर सदन से नहीं हटे हैं। केवल इसी के कारण बार बार डिप्टी चेयरमैन उनको कहते रहे, आप सदन से विड्रॉ करिए तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन विड्रॉ नहीं किए। ये उनका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रति उनकी क्या सोच है, ये इसको दिखाती है। जहां तक राहुल गांधी के सवाल है, राहुल गांधी झूठ बोलने में, झूठे प्रचार करने में माहिर जाने जाते हैं, तो इसलिए उनकी विश्वसनीयता बिल्कुल इस देश में नहीं है। फिर भी उनको कुछ
उनको कोई शंका है तो ऐसा कोई मेरे ख्याल से सरकार में या भाजपा में ऐसा किसी को दिलचस्पी नहीं है राहुल गांधी क्या कर रहे हैं देखने की, क्योंकि राहुल गांधी बेफजूल के काम करते हैं और कोई दिमाग अपना खराब करना चाहे तभी राहुल गांधी को ट्रैक करना चाहेंगे, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं। तो इसलिए लेकिन यदि उनको अपने फोन टैप होने की उनको कभी कहीं भी शक है, he has every right to go and approach file a complaint in a police station. He can file a petition in High Court or Supreme Court, but he is interested in only because whenever he goes to a court, he will be actually forced to apologize. We've seen how Rahul Gandhi apologized in Supreme Court for indulging in similar political stunt, and therefore he is not gathering courage to do it again. But if he thinks that his phone is being tapped by the government, and possibly he's being tapped by Rajasthan or Punjab government, because his chief ministers have every right or every reason to keep tabs on what Rahul Gandhi is saying. So I think he should file a complaint. Let the police station or let the court of the law of the land, let them take a call. So instead of holding the entire parliament to ransom for his the flimsiest allegations, he should allow the law to take its course. So he should file a complaint and move on, and not indulge in only theatrical drama. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूँ, पर जीवीएल साहब इसका मैं एक छोटा उत्तर चाहता हूँ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि ये पोटेंशियल टारगेट्स हुए हैं आपकी सरकार के स्नूपिंग स्कैंडल के, परंतु कोई अभी तक शिकायत दर्ज करने कहीं पर भी नहीं जा रहा। चलिए, आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है तो आप कोर्ट ही चले जाते, तो कोई कोर्ट तक अभी तक गया नहीं है, ऐसी खबर मेरे पास नहीं है। पर आई वांट टू आस्क यू जीवीएल राव साहब कि शशि थरूर हैज टेकन अ डिफरेंट स्टैंड। पार्टी इज डिमांडिंग जेपीसी, ही हैज सेड कि आईटी कमिटी जिसके वो सदस्य है, दैट इज मोर देन इनफ, एंड सम पीपल आर सेइंग जुडिशियल प्रोब। तो व्हाई इज देयर सो मच कंफ्यूजन इन व्हाट काइंड ऑफ प्रोब आल्सो दे वांट? I think the Congress is a confused house. I think what different leaders of the Congress party say actually has no logic whatsoever. Because in Rajya Sabha, for example, they blocked both the houses of Parliament. But in Rajya Sabha on last Tuesday, we had a 4-hour-long discussion on the COVID management and also the potential third wave threat of COVID. I think the leaders from across political parties shared their experiences, gave their views and suggestions. I think why did the leaders of the Congress party in Lok Sabha, why did they not agree to such a debate? Why did they not allow such a debate to happen? Is COVID a problem only for members in the Rajya Sabha and not to the Congress party or opposition in Lok Sabha? I think they seem to be working at cross purposes. And it is politics that is dictating their agenda rather than national interest. Therefore, the title of your program, In National Interest, is something that Congress party would loathe. I think they would be very, very unhappy looking at your promotion. Why the hell are they talking about national interest? We are all the time busy. We are all the time busy only acting against national interest. I think they would prefer if the title would be in parivarik interest. But आलोक मेहता जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आलोक मेहता, अब देखिए, जो सवाल सुनील देवधर जी ने उठाया, द क्वेश्चन दैट सुनील देवधर जी हैड रेज्ड, क्रेडिबिलिटी, इंटेंशन और टाइमिंग। आपने क्योंकि यूपीए सरकार को भी देखा है, आपने एनडीए 1 की भी सरकार को देखा है, उसके ऊपर भी आपने बेबाकी से राय रखी, और मुझे उम्मीद है कि ऐसी राय रखने के लिए आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है अभी तक, तो शुक्र मनाया जा सकता है कि अडवाणी जी और बाकी लोगों के बारे में खुलकर बोलने के बावजूद भी आपका नाम तो उस लिस्ट में आया नहीं है। पर बहरहाल सीरियस सवाल ये है कि क्या एक क्रेडिबिलिटी पर सवाल बनता है? एमनेस्टी के बारे में तो मनमोहन सिंह की सरकार भी कोई फेवरेबल व्यू नहीं रखती थी, और ये जो पत्रकार है जिनको इंपॉर्टेंट पत्रकार बताया जाता है, मुझे लगा आप इंपॉर्टेंट पत्रकार थे, मुझे लगा बहुत सारे और इंपॉर्टेंट पत्रकार थे, ये इंपॉर्टेंट पत्रकार जो अभी इजाद हुए हैं, इन्वेंट हुए हैं, इनके बारे में, इनकी विश्वसनीयता के बारे में और इनका नाम लिस्ट में आना, बाकी बड़े पत्रकारों का ना आना समझ नहीं आया। तो इसके बारे में थोड़ी सी आप रोशनी डालते इस पर। देखिए, दो बातें हैं इसमें, घालमेल भी है। मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ लोग उनको, जैसे अभी उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि आईबी वाले ने बताया, तो कई लोग रिटायर्ड लोग होंगे जो ये कह सकते हैं कि भाई आपका फोन
सर्विलेंस में रहता है। कुछ तो देखिए जिनके ऊपर सुरक्षा का भी खतरा है, चाहे पंजाब के आतंकवाद का हो, पाकिस्तान के आतंकवाद का हो, पंजाब में जो पाकिस्तान का आतंकवाद वहाँ पहले भी आया था, इस दृष्टि से भी मेरा ऐसा मानना है कि भारत तो इसीलिए यदि ऐसी सुरक्षा एजेंसियों ने यदि कुछ करती है तो वो तो पार्लियामेंट में भी जैसा कहा गया, शशि थरूर कहें या कोई सरकार भी कह सकती है कि भाई हम आपकी सुरक्षा की जरूरत है, आप तो ऐसी नहीं लेना चाहते, नहीं हो। मैंने एक पॉइंट बता रहा हूँ। दूसरा, आपको याद है नीरा राडिया केस जब हुआ था, उसमें इनकम टैक्स ने किया था, लेकिन उसको जिन लोगों ने किया वो एक कारपोरेट लॉबी काम कर रही थी, नेशनल इंटरनेशनल। आप ये भी जानते हैं कि चिदम्बरम साहब भी और मनमोहन सिंह सरकार उसमें 2G वाले में उनका भी नाम उस तरह का था, तो उनने दूसरे ग्रुप के साथ उनको निकालना था बाहर। उसमें भी कई ऐसे पत्रकारों के नाम भी आए थे, लेकिन तब तो कोई बवाल मचाया नहीं गया। तब थोड़ा बहुत कहा गया, लेकिन बल्कि उन पत्रकारों को मैंने वीर सांघवी हैं या मैंने आप उनकी राय से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उस समय इस बात को करके ये प्रचारित किया गया कि देखिए देखिए क्या बात हो रही है। इस बार के उसमें आप देखिए कि कोई भी भाई क्या डायलॉग हुआ हमारे आपके बीच में, आज को टेप हो रहा है तो वो बताएगा ना कि इसके बीच में ये हमने बात की थी। अच्छा, फिर ये कैसे बताएंगे? ये कह दे कि हमारी बातचीत हुई थी, हम तो रिकॉर्ड देने को तैयार हैं। तो लेकिन ये जो ऐसे संदिग्ध लोग रहे हैं कुछ, ये ठीक है कि उसमें प्रहलाद पटेल का नाम भी जोड़ दिया, बीजेपी का किसी मैंने स्मृति ईरानी जी के सहयोगियों का नाम लग गया। वो लिस्ट कैसे बनी, किसने बनाई, कि इनके लिए कोई खतरा है? देखिए, मुझे कोई धमकी देता है तो सरकार का दायित्व है कि आलोक मेहता ने चारा कांड किया था, तो आज यदि बिहार जाएंगे तो इनको कोई मार देगा क्या? तो मैं तो मानता हूं कि मेरी सुरक्षा के लिए भी वो अपना करें, मुझे चाहे बताए ना बताए, क्योंकि मैं तो कोई चोरी करने बिहार नहीं जा रहा हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ चीजों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, और जैसा मैंने कहा कारपोरेट लड़ाई, राफेल का नाम अभी लिया गया, तभी हमारे सुनील जी ने कहा, सही बात ये मैं जानता हूँ, यूरोप के, चीन के, रूस के, अमेरिका के सब लोग ही बेचना चाहते थे हमारा, उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट है जो राफेल के नाम पर पहले भारत में ऐसा मचाया जाए। और देखिए, एक खतरा मैं जरूर मानता हूं मीडिया के नाते, कि वो ये रहा है कि यदि बात पहले क्या होता था, चिट्ठी लिख दी गई, एक अखबार है वो इलाहाबाद पहुंचने में 2 दिन लग जाते थे, दिल्ली से अखबार छपा है, इलाहाबाद का अखबार छपा है या पटना का, तो वो 2 दिन बाद दिल्ली आता था। अब जो हमारे इस नए मीडिया का जनक हुआ है और इसीलिए IT के नए रूल लाए गए हैं, मैं तो इसके पक्षधर रहा हूँ कि लक्ष्मण रेखा, मैं ये मान रहा हूँ कि प्राइवेसी अपनी जगह है, कोई पति पत्नी बात कर रहा है तो उसकी, और अच्छा जहां टेपिंग की बात है, मैं उदाहरण दूंगा, दिलीप पडगांवकर टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक थे, तो उनकी उस समय तो ये टेपिंग की जरूरत होती, तो फोन आया, अच्छा आपने अपनी पत्नी को फोन किया था तो उनसे 650 रुपया कंपनी ने वसूल किया। अरे वो तो इससे भी ज्यादा गंभीर बने आदमी के बारे में पता लगाना है कि किसको फोन कर रहा है। तो मैं ऐसी घटनाएं नजर रखने के लिए कंपनी रख रही है, कोई आपका दूसरा जो राइवल है, भाई मैं जानता हूँ आप वायर कहें या न्यूज़, उनके भी कई लोग प्रतिद्वंदिता आपस में है, तो वो लोग तो गड़बड़ भी करते हैं, या ऐसे और भी कोई पत्रकार हो सकते हैं। अच्छा, एक और मैं कहूंगा आपको, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी वहाँ जो घटनाएं हुई दुर्भाग्यपूर्ण हुई, हम भी मानते हैं कि उस तरह का कई चीजें जो मान लो उसमें लोग मारे गए, लेकिन उनको लेकर के एक रिपोर्टर ने पुस्तक लिखी, महिला पत्रकार, अब वो अमेरिका में छाई रहती, उनको करोड़ों रुपया उनके पास आ रहा है। आप ये बताइए, जिनके पास मतलब स्कूटर के या मान लो तनख्वाह भी 10-20 हजार, 25 हजार, 50 हजार भी मिलती हो, 50 हजार तो मिल नहीं सकती थी, लेकिन उनको देश दुनिया में, तो ऐसे ही लोग कैसे भारत के एक तरह से उनको मोहरा बनाए। अरुंधति राय है, देखिए मैं आउटलुक में काम किया, मैं अरुंधति राय को नहीं छापता था, देखिए एक स्वतंत्रता के उपयोग करने की बात है, मैं कहता था भाई मैं मानता हूँ कि वो तो कहते कश्मीर को अलग देना है तो दे दीजिए। मनोज मेहता, उनका बड़ा इज्जत करता, आज भी मानता हूँ कि उन्होंने उनका अपना कंट्रीब्यूशन है, उनको अटल जी भी मानते थे, मनोज मेहता को, ऐसा नहीं, कुछ विवाद छोड़ दीजिए, उनके विचार थे, विचार कुलदीप नायर के कितने भिन्न थे, इस सरकार ने कुलदीप नायर जी को सम्मानित किया, पद्म भूषण दिया है, तो सही बात, जबकि उनके बारे में आलोचना थी। एमजे अकबर को भी ISI का तक का लोग आरोप लगाते थे, यही पत्रकार बिरादरी में से। तो ये सही बात ये है कि उनकी कमियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं देश के हित में, लेकिन जो लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए इस समय फैलाने के लिए कोरोना को लेकर के फैलाया जा रहा है। तीसरा एक कारण बताऊंगा भाई, सही बात यह है शहजाद जी कि देखिए होता यह है कि भारत में और पैसा लोग लगाना चाहते हैं चीन के बजाय, ये सब बवंडर करके आर्थिक व्यवस्था को कैसे कमजोर, उत्तर प्रदेश में मान लो अब तो चुनाव ही आने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मैंने जहां पैसा, गुजरात में तो पहले संपन्नता है, उन राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां पैसा ना आए, ऐसा बाउंडर कि भाई आप जाएंगे तो मार दिए जाएंगे, आपका फोन टेप हो जाएगा, आपको पार्लियामेंट तो चलती नहीं है,
वहां सारे लड़ते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम होता रहता है। मतलब ये जो प्रचार है, अच्छा मैं आपको एक और जोड़ूंगा। सही बात यह है कि जो हमारे वहाँ जो एनआरआईज हैं, हमेशा इवन इस बीच में भी लोग आते रहे जाते रहे, और अभी 2 साल से रुका हुआ है एनआरआई का सम्मेलन। उस समय सरकारों ने शुरू किया, लक्ष्मण सिंघवी जी के जब हाई कमिश्नर थे, अटल जी, उन लोगों ने उसको माना। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग भी डरने लगे भारत से। मैं ऐसे, मेरे परिवार के लोग वहां पर है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो कहते हैं अरे भारत में क्या हो रहा है, वहां कैसे, जो 1-2 साल पहले सोच रहे थे, जिनकी मोदी जी से भी मुलाकात हुई, वो वहां मुझसे पूछते हैं कि भाई भारत में ऐसी स्थिति है, पैसा यहाँ लगाएं, अभी तो हम यहीं पर कुछ खरीद के यहीं कुछ लगा लेते हैं। ब्रिटेन जबकि यूरोप से भी अलग हो गया, इस समय जरूरत थी कि हमारे पास बहुत बड़े पैमाने पर चीन से लोग छोड़ रहे हैं, यूरोप के लोग ब्रिटेन छोड़ रहे हैं, ब्रिटेन के लोग उसको छोड़ रहे हैं, अमेरिका भी अपना षड्यंत्र करता है, तो वो अपने ढंग से ब्रिटेन वाले भी उससे कुछ दूरी बनाते हैं। रशिया और चाइना एक हो गए हैं। तो एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इंडियन इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए सबसे बड़ी कोशिश इस तरह की, पार्लियामेंट में यदि कोई अच्छी चीज पास होगी कि भाई इनकी ये सुविधाएं बढ़ना है, और 6 महीने निकल जाएंगे, फिर कहेंगे देखिए मोदी जी ने वायदा किया था, पूरा नहीं हुआ। कश्मीर को आज भी उनका एजेंडा खत्म नहीं हुआ, चूंकि भ्रष्टाचार के आरोप, ये ठीक है कि हमारे यहाँ कानून की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि लोगों पर एक्शन नहीं होते। और वैसे आपने जो कहा अडवाणी जी की, मैंने आलोचना नहीं की, मैंने कहा कि अडवाणी जी उदारता दिखा दी कि चलो एक महिला है, यदि प्रमाणित पूरा नहीं होता है तो उसको छोड़ दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई भी सरकार जब उदारता दिखाती है उसके बाद वो कोई सरकारें करती है। अटल जी ने कहा राहुल गांधी कहीं फंस गए या रॉबर्ट वड्रा कहीं फंस गए तो कहेंगे अरे भारतीय नागरिक है ना, भारतीय नागरिक होने के नाते या विदेशी अमेरिकन नागरिक है तो यहाँ से गड़बड़ करके बाहर चला जाता है। उसी तरह से कभी कभी दया करके किया गया हो, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे समय में उनके पूरे परिप्रेक्ष्य में उनके और जो शिकंजे कसे जाने चाहिए, और अदालत से जल्दी, मोदी जी ने पहले भी प्रॉमिस किया था, मैं याद दिलाऊंगा नरसिंह राव जी को भी, कहा था कि जल्दी ऐसे जो नेता हैं जिनके आपराधिक मामले हैं उनके मामलों पे जल्दी शॉर्ट ट्रायल, जैसे होता है ना, आपको 3 महीने में करके खत्म करिए। नेशनल हेराल्ड की कितनी संपत्ति है, देखिए मीडिया को खतरा है, मैं कहूंगा, मैं ज्यादा नहीं कहता, मीडिया को खतरा है। नेशनल हेराल्ड क्या मोदी जी ने खरीद लिया है क्या? ये तो उनका अखबार है जो फिरोज गांधी को रामनाथ गोयनका ने पैसे दिए थे, उसके बल पर प्रेस लगी थी। आज मुंबई में, दिल्ली में, भोपाल में मॉल चल रहा है। अभी एक दूसरे अखबार की चर्चा हो रही है, लेकिन वहां तो इनका मॉल बना हुआ, उसमें एक भी आदमी, एक अखबार का क्या है, कोना भी नहीं है। तो एक ही जगह उनकी बिल्डिंग्स है, अभी तक कोई सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती कि भाई आपने अवैध कब्जा कर रखा है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, मुझे तो 2 गज जमीन, 10 गज जिसको कहते हैं। पर आलोक जी, दिक्कत यही है ना, दिक्कत यही है कि अगर कार्रवाई अगर बहुत जल्दबाजी में की जाए तो यही जो मंडली है वो चिल्लाती है कि देखिए ये हमारे ऊपर वेंडेटापूर्ण आक्रमण किया जा रहा है। और इसलिए सुनील जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। अदालत, मेरा कहना अदालत करती है ना, ठीक है, सरकार क्यों करेगी? अदालत यदि फैसला करेगी कि हाँ इलीगल है तो उसके बाद तो उस पर जब तो कर ली जाएगी ना बिल्डिंग, उस बिल्डिंग पे दूसरा अस्पताल चलाइए आप। जो जरूरत है कि ऐसी लोगों की बिल्डिंग से अवैध कब्जा करके जो जमीन लिया हुआ था, मध्य प्रदेश में 15 साल सरकार रही है कांग्रेस बीजेपी की, उसके बाद भी ऐसे लोगों को क्यों रियायत दी जाती है? जी नहीं, जो अखबार अभी चिल्ला रहा है, गुजरात में तो मोदी जी ने उनको जमीन दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो भोपाल और देश भर में जो छापे पड़े हैं, आज ये उसको खतरा बताया जा रहा है। इनको तो जमीन बीजेपी सरकारों ने दिया, राजस्थान में बीजेपी लोगों ने मदद किया। अचानक चूंकि वो गलती धंधा करके 2000, 5000, 6000 करोड़ कमा लिए, ऐसे सब लोग जो हैं उसको मीडिया की स्वतंत्रता बताने लगते हैं। तो ये दोनों टेपिंग हो। अब जब आप 6000 करोड़ का घोटाला करेंगे, आपका पनामा पेपर्स में नाम आएगा, तो टेपिंग क्यों नहीं होगी? वो सरकार करे या प्राइवेट एजेंसी करे? करेक्ट जी। तो सुनील जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सुनील जी, क्या जैसे आप भी कह रहे थे और इसी बात को आगे बढ़ा रहे थे आलोक जी भी, कि क्या देश की और इंडिया की एक स्टोरी जो बन रही है, उभर कर निकल रही है, उससे एक तरीके से उसे कैसे डैमेज किया जाए, और किस तरीके से चाइना हो, चाहे जो देश के जो दूसरे कंपेटिटिव राइवल्स है, क्या उनके तरफ से ये पूरा ऑर्गेनाइज किया गया एक स्कैंडल है, एक प्रोपेगेंडा है। और सवाल ये फिर से पैदा होता है कि क्यों ये खुलकर नहीं बता पा रहे हैं कि ये टारगेट है या ये नहीं है। ये कह रहे हैं पोटेंशियल टारगेट। अब पोटेंशियल टारगेट क्या होता है? तो पोटेंशियल टारगेट या इस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल करना, कंजेक्चर पे एक आक्रमण करना, क्या ये बार बार ऐसा एक पैटर्न बनता जा रहा है? कोविड में भी यही हुआ, सेकेंड वेव में, आज भी यही हो रहा है। देखिए शहजाद भाई, मोदी जी जैसे जैसे कोई एक सक्सेस स्टोरी निर्माण करते हैं,
तो उनकी लोकप्रियता से डर के तुरंत उस जनता का ध्यान भटकाने के लिए, जनता का माइंड डाइवर्ट करने के लिए किसी एक झूठ का पुलिंदा फोड़कर उसके ऊपर चर्चा चालू करते हैं। और जैसे पहले से ही हम लोग जानते हैं, मीडिया में बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो बेनिफिशियर्स रहे हैं कांग्रेस की सरकारों के, और वो आज भी उनको गुरु दक्षिणा देने का काम करते हैं और आगे का इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं कि खुदा ना खास्ता कभी अगर ये वापस आ जाए तो आज ही हम ऐसा पराक्रम करके रखेंगे ताकि वापस हम बेनिफिशियर्स बन जाए। हालांकि वो होने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश की जनता बेवकूफ नहीं है, बुद्धिमान है, और वो सच और झूठ क्या है ये समझती है। लेकिन ये अपनी कोशिश कर रहे हैं, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने बहुत स्पष्टता से बता दिया है कि ये जासूसी जो है, इस तरह से अवैध जासूसी असंभव है, केंद्र सरकार ये कर ही नहीं सकती और हम ऐसा करते भी नहीं है। अश्विनी वैष्णव जी ने भी वही कहा है कि ये झूठ है, ऐसा कोई किया नहीं है, ऐसा हम कर भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते ऐसे करने का। और अमित भाई ने तो इधर तक कहा है कि ये भारत के विकास को रोकने की कोशिश है, जनता का ध्यान भटकाना, लेकिन भारत की विकास को रोकना, संसद को डिरेल करने का एक षड्यंत्र है। और संसद को डिरेल करने का षड्यंत्र क्यों है? क्योंकि आप जरा कांग्रेस सरकार के समय चलने वाली संसद को याद कीजिए, और जल्दी जल्दी वाइंड अप कर जाते थे, उसकी प्रोडक्टिविटी कम थी, बिल नहीं पास होते थे, नए बिल लाने की इच्छा नहीं रहती थी, और इसके जो कार्यकाल जितना चलना चाहिए वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने अय्याशी में भाग जाने पर इनका भर रहता था। लेकिन आप अगर देखेंगे, जैसे पिछले ही सदन का जो अगर परफॉर्मेंस आप देखेंगे, जो जनवरी फरवरी में जो हुआ, 24 सिटिंग हुई, 132 घंटे कार्रवाई हुई, 114% प्रोडक्टिविटी रेट था, 18 बिल पास किए गए। सी नेवर बिफोर इस प्रकार की पार्लियामेंट कभी चली ही नहीं है, और ये कांग्रेस और ये जो वामपंथी और विपक्ष है इसके लिए अनइमेजिनेबल है। अच्छा, ये चल रहा है, देश के हित में चल रहा है, लेकिन ये देश के हित में काम करने वाले, सोचने वाले लोग है ही नहीं। ये तो एक परिवार के हित में या खुद के लिए काम करने वाले लोग हैं, और जनता अगर इसके बेनिफिशियर है तो जनता मोदी को वापस लेकर आएगी। और इसलिए जनता के ये ध्यान में नहीं आना चाहिए कुछ अच्छा हो रहा है, इसलिए बार बार ध्यान भटकाने का पाप ये लोग करते। जैसे मैंने ट्वीट किया था, मैं आपको बताता हूं कि ये कोरोना महामारी के बीच जो पिछले बार, मतलब जनवरी फरवरी नहीं, मैं पिछले नवंबर दिसंबर की बात कर रहा हूं, उस समय जो पार्लियामेंट चली थी उसका जो है 10 दिन चले मानसून सत्र में 27 विधेयक पास हुए थे। राज्यसभा में 100% 100.47% कामकाज चला था, और लोकसभा में 167% कामकाज चला था। अभी इस तरह से अगर एक एक रिकॉर्ड मोदी सरकार प्रस्थापित करेगी और ऐसे निर्णय लिए जाएंगे कि इनकी दुकान बंद हो जाएगी, हर निर्णय के पीछे इनकी दुकान बंद है। अच्छा, हर मोदी की सक्सेस स्टोरी को डाइवर्ट करने का जो मैंने कहा, मोदी जी ने सबसे पहले जनता कर्फ्यू किया, सक्सेसफुल हुआ, वो कोई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया, जनता ने उसको सक्सेस दिया। तालियां थालियां बजाना, रात को दिए जलाना, आर्मी के सभी अंगों को लेकर जो कोरोना वॉरियर्स है उनको धन्यवाद देने के काम। तो पहला, आप अगर याद करेंगे पिछला साल, मोदी के हर बात के ऊपर लोगों का कितना विश्वास है, लोग कैसे मोदी जी के साथ जुड़े हैं, इसके कारण जो है ये सब अस्वस्थ हो गए, ये सब ये पेस्ट कंट्रोल होने लगा ना, तो ये सारे जो है बिल से बिलबिलाकर निकले हुए लोग हैं, और ये झूठ के पुलिंदे, वो जो पत्थर फेंक कर भाग जाने वाले लोग हैं ना, ऐसे ये सारे लोग हैं। अब जैसे वैक्सीन के बारे में देखिए, जब स्वदेशी वैक्सीन बन गई तब इन्होंने बोलना शुरू किया ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है। कोई कहता है वैक्सीन लगाएंगे तो नपुंसक हो जाएंगे, कोई कहता है वैक्सीन तो मैं लेने वाला नहीं हूं, ये वैक्सीन लगाते ही कैसे मर गया। और फिर इनके चैनल बैठे हुए ही है ना, जैसे देखिए, मैं तो डॉग लवर हूं, लेकिन फिर भी किसी एक गली में एक भौंकना चालू करता है, अचानक सभी गलियों में से भाव 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 चालू होता है ना। इस प्रकार के ये सब नादान लोग हैं जो झूठ, एक झूठ 100 बार बड़बड़ बड़बड़ करने की काम ये करते, जनता का माइंड डाइवर्ट करने की काम करते। इसमें कांगी है, कॉमरेड्स है, विपक्ष की ये छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये डर निर्माण करती है जनता के अंदर। ये जो इन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में किया,
और उसके बाद में बताया राज्य सरकारों को काम दो, राज्य सरकारों को करने दो। मोदी जी ने कहा चलो राज्य सरकार करे, वो बोले नहीं हम डायरेक्ट विदेश के साथ। अरे केजरीवाल ने तो सिंगापुर का नाम लेकर जो है इस देश के इंटरनेशनल रिलेशन पर्पसफुली बिगाड़ने का पाप किया है। कितना बड़ा पाप है। और आप आज देखते हैं आज की ही मन की बात में किस तरह से विदेशों के साथ रिश्ते सुधारने की बात हमारे देश ने की है, उसके बारे में मोदी जी ने 2 उदाहरण दिए कि हम तो विदेशों के साथ रिश्ते सुधारना चाहते। और सही कहा मेहता जी आपने कि ये इस प्रकार का अगर एक नैरेटिव सेट हो जाता है कि फोन स्टैप होते हैं, जासूसी होती है वगैरह, तो फिर ये विदेशी कंपनियां भी सोचेगी ना भारत में आने के बारे में, भैया इस देश में क्या हो रहा है। और ये जासूसी के बारे में मेहता जी आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, आपको तो पता है कि किस तरह से चंद्रशेखर की सरकार गिरी थी। चंद्रशेखर की सरकार गिराने का कारण था कि राजीव गांधी के बंगले के सामने 2 स्पेशल ब्रांच के पुलिस घूम रहे थे। इतने कारण पर इस देश पर अस्थिरता निर्माण करने का पाप कांग्रेस ने किया है। आपको मैं बताता हूं, मैं महाराष्ट्र से आता हूं। एक पुरानी मराठी फिल्म है, बेहतरीन फिल्म है, वो सिंहासन नाम है उसका, 1979 की फिल्म है। आप वो फिल्म जरूर देखिए। उस फिल्म में आप देखेंगे किस तरह से फोन टैपिंग ये एक राजनीतिक हथियार के रूप में स्वपक्ष के लोगों को दबाने के लिए, विपक्ष तो छोड़ ही दीजिए, स्वपक्ष के लोगों को दबाने के लिए। और वो सारा कांग्रेस बैकग्राउंड, उस समय तो एनसीपी नहीं थी, उसका पूरा जो चित्रीकरण है कांग्रेस बैकग्राउंड का है। और देखिए अभी मैंने जैसे कहा कि मोदी जी चीयर इंडिया कह रहे हैं, ये लोग चीट इंडिया कर रहे हैं। आज उसी न्यूज़पेपर का जिसके ऊपर ये रेड्स वगैरह गिरने के बाद अचानक वो हमारे देश को बदनाम करने में लग गया। अब सुरजेवाला ने उसको आज ट्वीट करके महंगाई की दुहाई दे, महंगाई मार गई। अरे सुरजेवाला भाई आपको पता होना चाहिए महंगाई मार गई ये जो गीत है ये फेमस कव्वाली है रोटी कपड़ा और मकान की, 1979 की फिल्म है। उस जमाने में जब ये 77 की फिल्म है, जब वो जनता गवर्नमेंट का जो दौर था उस समय जो महंगाई बढ़ गई थी उसके ऊपर वो फिल्माया गया था। और आपके सरकार के 10 साल की मनमोहन सरकार के समय 2013 में पिपली लाइव में महंगाई डायन खाए जाते गीत बना, ये सारे आपके सरकार के समय महंगाई वाली बातें थी। आप महंगाई को जोड़ के हमारी मीराबाई चानू के विजय को लेकर अगर आप निंदा करेंगे तो कितना बड़ा आप पाप करेंगे। देश को शर्मसार करने का ये लोग पाप करते हैं। और इसलिए ये पार्लियामेंट को डिरेल करने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ का पुलिंदा इन्होंने फोड़ा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये इसमें सफल नहीं रहेंगे। पर जीवीएल साहब, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अभी मैं देख रहा हूं पी चिदम्बरम हैज सेड that there should be an inquiry by a sitting judge, and it's ironical that Mr. P. Chidambaram, whose own history in this regard is quite dubious, is making this demand from the government. So what is the way forward, and does Congress have any credit to stand on when it comes to the issue of snooping? Shahjad ji, I think as you rightly pointed out, Mr. Chidambaram's own personal record in this is not covered with glory. I think he himself was accused by none other than the former president Pranab Mukherjee. He himself alluded to Chidambaram being the man who was actually snooping on him when both of them were ministers in Manmohan Singh cabinet. So I think that is the history. That's the kind of credibility that Mr. Chidambaram has. And also, you remember how the UPA government, when Chidambaram was the Union Home Minister, how they subverted India's national security only for the sake of their political success. The whole story of the cooked up story of Hindu terror, saffron terror, all this was done only to gain politically. They wanted to present Hindus as enemies of this country so that they could possibly appease a vote bank. I think they stooped to that level. They directly, in fact, they did not listen to the then National Security Advisor, who clearly told them that Ishrat Jahan was a LET operative, and therefore
prosecuting the IB officials. Mr. Chidambaram as Home Minister was hell-bent on prosecuting the IB officers only to harass the BJP leaders in Gujarat. I think this is their national security is not a political issue. And no government should see it through a political prism. But Chidambaram is guilty of having subverted national security at the altar of party politics. So he has least credibility. Rahul Gandhi is known to be a liar. He has been he had to apologize profusely to Supreme Court for making false allegations against the Prime Minister Shri Narendra Modi, and also for falsely attributing to the Supreme Court some comments about Rafale which the court never made. So I think it is the Congress Party's credibility in this regard is extremely low, and Congress Party has been abuser of such snooping activities when they were in power, both at the center and in the states. And today they want to abuse that process. They want to abuse that process by making false allegations against our government. Our government has had absolutely a zero tolerance against terror, and it has highest standards of as far as political ethics is concerned. And they are only trying to really indulge in a fishing expedition. I think they seem to be making a new demand every day, a JPC inquiry, sometimes Supreme Court monitored investigation. Somebody else says only a parliamentary standing committee inquiry will do. But the reality is there is really no need to do anything, because this is purely a figment of their imagination. It's a completely concocted story. And therefore, the government will try to reason out with the opposition when Parliament convenes tomorrow. And they are actually hurting national interest by not allowing Parliament to function. Even on these issues, the government is willing to have a debate and discussion. After the statement of the minister, IT minister in Parliament, the opposition had the opportunity to ask questions. Generally, whenever a minister makes a statement, it is obligatory, and generally the chairman or the presiding officer allows the opposition members to ask questions or seek clarifications. You do not allow Parliament to function. You don't seek answers from the government, and you only want to go out of Parliament and create halla. I think this clearly exposes them. If they do not stop this, if they do not stop it here, we will certainly go to the people of this country. As and when the House adjourns, we will go to the people of this country, and we will show them the real face of Congress Party and Rahul Gandhi. And it's ironical that today Mr. Chidambaram is demanding a judicial review by a sitting Supreme Court judge. पर जब फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रफाल में आया तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे राहुल गांधी. अब कह रहे सुप्रीम कोर्ट जांच करे. पर आलोक मेहता जी, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ. मैंने सुना इसको स्पाईगेट के बाद अप्लाई गेट भी बोला गया. अप्लाई गेट इसलिए बोला गया क्योंकि जब पहली रिपोर्ट आई तो बहुत सारे पत्रकार को लगा कि मैं तो 2 kg 3 kg गाली देता हूं नरेंद्र मोदी को, मेरा नाम कैसे नहीं है इस लिस्ट में. तो उनको लगा कि उनकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी, तो वो अप्लाई करने लगे कि भाई मेरा अगली लिस्ट में तो कम से कम मेरा नाम आ जाए. क्या आपने भी ऐसा कुछ सुना, ऐसा हुआ था कि ये केवल मेरे कानों तक पहुंची है बात, कि कई लोग विनती कर रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं मेरा भी नाम पोटेंशियल टारगेट में डाल दो, वरना मुझे भी जो मेरी रेलेवेंस है, मोदी को मैं रोज सुबह से शाम गाली देता हूं, उसका कोई भरपाया कौन हो, कैसे होगा? देखिए, हंसने के लिए ठीक है, लेकिन मुझे तो लगता है उनका फंडिंग है, जैसा अभी कह रहे थे, वो कांग्रेस करे, बाहर की ताकतें करे, कई और पार्टियां हैं जो जिनका इंटरेस्ट होता है वो करते रहे. लेकिन मैं इस बारे में बात को जोड़ना चाह रहा था कि देखिए क्यों चिदम्बरम ये सब बोलते हैं. खाली चिदम्बरम का, अभी प्रणब मुखर्जी का, चंद्रशेखर जी की बात अभी जी ने कही, मैं तो याद दिलाऊंगा इससे पहले बंगारप्पा और हेगड़े जी वाला सबसे पहले इस तरह का टेलीफोन टेपिंग कांड आया था कर्नाटक के समय, और उस समय हेगड़े जी ने ही उनका टेपिंग कराया था उसको लेकर के. अच्छा देखिए, सब ये पुराने कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं ना, मतलब ठीक है, बाद में अलग अलग चले गए, कांग्रेस से अलग हो गए, लेकिन सही बात ये है कि अच्छा जेल से, मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ, इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, इमरजेंसी के लिए तो आपको 50 लोग, मुझसे ज्यादा बुजुर्ग लोग भी मिल जाएंगे, लेकिन जो इमरजेंसी के बाद ज्ञानी जेल सिंह जब राष्ट्रपति थे, और एक आध बार मैं खुद भी किसी मंत्री के साथ ही वहां पर, जैसे होता है ना, कुछ बात करने गए, और चलो वो ज्ञानी जी तो सबसे, पत्रकारों को भी हम लोगों ने जब एक बार कहा था तो पत्रकारों से भी खुल के मिलते रहते थे, वो अलग बात है राष्ट्रपति. तो
वो उन्होंने कहा अरे भाई यहाँ नहीं, वो तब तो टेलीफोन होता था, मोबाइल भी नहीं होता था। करेक्ट उन्होंने कहा नहीं ऐसा है, जरा बाहर चल के बात करेंगे लॉन में। जी। इवन डीपी मिश्रा बांग्लादेश वार के समय, तब तो डीपी मिश्रा तो सलाहकार थे इंदिरा गांधी के, और हाँ। बालेश्वर अग्रवाल जो हिंदुस्तान समाचार के चीफ एडिटर भी थे, जबकि संघ से जुड़े हुए थे, तो इसलिए उनके साथ भी खुल के बताते रहते थे भारत कैसे कर रहा है, भारत क्या कर सकता है, सरकार को सहयोग करना चाहिए, संघ भी सहयोग करे। वो भी लॉन में जाकर के बात करते थे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए, जिनको ये चिंता वो कराते रहे लोग एक दूसरे की, सरकार में रह करके उनके बारे में पता, या खुद उसको हवा बनाना चाहते हैं, तो एक तत्व वो है। दूसरा, पत्रकारों में भी जिनको फंडिंग हो रही है, या जो जैसा अभी कहा गया, जिनको आगे लगता है कि हमें इस सरकार से, देखिए इस सरकार में हुआ क्या है कि भाई पहले आपने, हम वहां जाएंगे आपका काम करा देंगे, वो ये जो एक प्रवृत्ति थी, प्रधानमंत्री हो या कांग्रेस के ऐसे नेता हो, उनकी दलाली करने वाले, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने अभी जो एक पुस्तक लिखी है उसमें पेड न्यूज पर भी पूरा एक वो है, ये पावर प्रेस एंड पॉलिटिक्स। कभी मैं कहूंगा कि वो भी मैं उनको डिटेल भेजूंगा, और आपके पास भी शायद भेजा हो नरसिंह राव जी से। तो पेड न्यूज में कैसे कैसे उस काल में, मतलब उसमें कई, लालजी टंडन जी अब नहीं, लेकिन उनसे भी कैसे अखबार वाले कैसे पैसे मांगते थे। तो ऐसे कितने ही केसेस में भ्रष्टाचार करने में मालिक, पत्रकार, ये कैसे पहले भी रहे, और जिनको इंदिरा गांधी के चुनाव में कैसे कहा जाए कि भाई वो जीत रही हैं 77 में भी, पैसे लेकर के लोग गए, बड़े हेडलाइन, दिल्ली के अखबार, नेशनल अखबार जो सो कॉल्ड मैं कहता हूँ, जहां मैंने काम किया है, लेकिन उस समय की स्थिति बता रहा हूँ मैं, आंखों देखा उन लोगों ने, नेता बताते थे कि हमने इनको 20,000 रुपए दिया और ये चाहे जो करेंगे। हेमवती बहुगुणा के समय के सारे इंसिडेंट मैं तो आंखों देखा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा नरसिंह राव से परिचय थे, नरसिंह राव जी को पैसे मांगा, ये कह देंगे आलोक जी देखो आपका वो एक आदमी, एक रिपोर्टर आता है वो तो हमसे मांगता है, नरसिंह राव जी नहीं देते। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि लोग बीजेपी के नेताओं से भी लेने की कोशिश करते थे, और दिए भी हो गए, मतलब इसलिए उसके बारे में नाम नहीं ले रहा हूँ लोगों के, लेकिन ये है कि लोग फायदा कहते हैं, अच्छा भाई ठीक है हमें बड़ी गरीबी है हमारे पास। मुलायम सिंह यादव से तो लोग पिस्टल का लाइसेंस ले लेते थे, और ताकि उसे बेच दे पत्रकार, ताकि 25,000 रुपए मिल जाएगा। मुलायम सिंह कहते भी थे भाई तुमको और किसी से नहीं मिल सकता है, एक लिस्ट थी पूरी। चारा कांड में कांग्रेस पे, बीजेपी पे आरोप लगाते हैं गोदी मीडिया में, इसलिए मुझे आपत्ति होती है। हमारे बारे में कोई 1,000 रुपया भी नरसिंह राव जी दिखा दे कि भाई आलोक मेहता को 1,000 रुपया हमने दिलाया, मैं आफ्टर हम भी कोई पत्रकार तो हैं, आज भी लिखते हैं, बोलते हैं। जी आप ये बताइए कि उस समय लाला चारा कांड में 40-40 लाख रुपया, ये जो ब्रिगेड है इन्हीं के आदमी एक हैं, उनका नाम सीबीआई में जोगेंद्र सिंह जी ने, मैंने कहा था पूरी लिस्ट दे दीजिए। मुलायम सिंह की लिस्ट तो एक बार बाकायदा विधानसभा में रखी गई थी, भाई इन लोगों को पत्रकार पैसा लेते हैं। तो ये कहना कि आज खरीदा, आज तो खरीदने वाले मुझे कम दिखाई देते हैं, पता नहीं जिसको मिलता होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बेहतर तो ये है कि जो उनके होंगे वो भी शायद संकट में होंगे, क्योंकि कोई धंधा नहीं कर सकते ना कि आज अमित शाह जी के पास जाएंगे काम करा देंगे, मोदी जी के ऑफिस में जाएंगे काम करा देंगे, या जो मंत्री इतने सारे हैं उन पर जाकर के काम करा लेंगे। तो वो धंधे काफी रुक गए। उससे भी एक जो ऐसी लॉबी थी, जो स्कूटर टूटा हुआ था उनके पास 1,000 करोड़ रुपया है, जिनकी तनख्वाह 2 लाख रुपए होती थी उनके फार्म हाउस हैं। तो भाई ये सब पैसा, इसलिए समस्या हमारे नहीं क्या सब गड़बड़ नहीं है। मैं इसीलिए इस कार्यक्रम के जरिए आपको ये भी कहूंगा, आज भी मैंने किसी को कहा, भोपाल में ही बड़ी बहस चल रही है व्हाट्सएप ग्रुप में भी, तो मैं हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन मैंने कहा चाहे वो केरल के अखबार हो, तमिलनाडु के हो, गुजरात के हो, हजारों लोग ठीक से बेचारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो आलोचना छापते हैं। गुजरात संदेश, टेलीग्राफ को छोड़ दीजिए, गुजरात संदेश और संदेश जो जहां मोदी जी का गृह राज्य है, और वो मुख्यमंत्री थे तब भी उनकी आलोचना छापते थे, आज भी छाप रहे हैं, उन पे तो कोई अंकुश हुआ नहीं। अब पता नहीं किस पर अंकुश हो रहा है। टेलीग्राफ रोज गालियां, मैंने बहुत, जो मैं कहता हूँ जर्नलिस्टिक इथिक्स के खिलाफ है। मैं नरसिंह राव से निवेदन करूंगा, इन अखबारों को जो विज्ञापन जाते हैं, एक पॉलिसी बनवाइए। कोई अच्छा अखबार है उसका 20,000 सर्कुलेशन है, तब भी मैं पिछली सरकार उस समय भी कहा था, पिछले उस पर भी, कि भाई आप उनको जो सही अखबार है उनको मदद करें, उस रूप में विज्ञापन ही यदि जाना है, पोलियो के बारे में, कोरोना के बारे में, ऐसे अखबारों को जो आपकी बिल्कुल ही देश को बर्बाद करना चाहते हैं, या तो उनको तो मदद ना हो, लेकिन आलोचना होती है। मलयालम मनोरमा है, केरल का अखबार है, उनको मेरी किताब में लिखा है, मामन मैथ्यू ने इसका वो किया है फॉरवर्ड, वो भी मानते हैं कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने तंग किया। आश्चर्य की बात है, दोनों सरकारें कहती थी तुम उनकी तरफ मिले हुए हो। तो ये हमारे यहाँ प्रवृत्ति है। यदि आपके कार्यक्रम में ना हो तो आप कहें देखिए मेरे दुश्मन है, देखिए आपने बात नहीं करना चाहते इसलिए कंप्यूटर खराब कर लिया। ये जो है, आपको पूर्वाग्रह देखना है तो देख लीजिए,
अब मैं कहूँगा यार पूर्वाग्रह है कि आप देखो मुझे तंग करना चाहते हैं इसलिए आपने सोचा 2 घंटा इनका पकड़ ले, तो अब ये तो लड़ना ही है तो कुछ भी लड़ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पत्रकारों पर ऐसी कोई खतरा नहीं है, जो लोग काम कर रहे हैं ईमानदारी से उनको खतरा नहीं है। मालिकों के वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो ब्लैकमेल करते रहे हर युग में हर सरकारों से, और उससे ऐसे जो ब्लैकमेलर हैं उनकी वजह से भारत की बदनामी होती है, और वही लोग फीड करते हैं विदेशों में उन अखबारों को जो विदेशी अखबार में कहा जाता है ना, यहाँ गंगा की लाश। एक लाइन और कहूंगा, मेरे पास अभी एक इलेक्ट्रिशियन बिहार से आया, वो मुजफ्फरपुर के पास के गांव का है। वो जो है उसने कहा कि सर वो हमारे यहाँ कई परंपरा है, कुछ लोगों को इस तरह से गंगा में, तो बनारस की बात नहीं है, वहां पर भी वो नदी में बहा देते हैं। ये कुछ लोगों की अपनी एक है, बल्कि मुझे एग्जैक्ट धर्म के हिसाब से नहीं मालूम, शायद सुनील जी बताएंगे, पारसियों में या किसी और कम्युनिटी में भी बाकायदा उसकी परंपरा है। वाराणसी में भी कई बार ऐसा पहले भी होता था। तो लेकिन इस समय उसको ये दिखा कि साहब लोग मरे गए इतने बड़े पैमाने पर। अमेरिका न्यूयॉर्क में जो फ्रिज में अभी भी लाशें पड़ी हुई थी, अभी पिछले महीने तक इस पर चर्चा वो एक साल भर हो गया, वो लाशें बाहर वैन में जो रखा जाता है ना, कि उनके लिए अभी जगह नहीं बनी है कि उनको कहाँ दफनाया जा सकता, मतलब उनको कहाँ उनको रखा जाए, मतलब दफनाया जाएगा। उसके बारे में तो भारत के अखबार नहीं छापते। वहां के अखबार ये छापते हैं कि भारत में लाशें बहाई जा रही हैं, पुराना फोटो लगा दीजिए, झूठा फोटो लगा दीजिए, और कई अंधविश्वास है। वो कहता है देखिए इसी तरह से हमारे यहाँ यदि अच्छा कोई काम होता है उसको बाहर न दिखाया जाए, उसकी निगेटिव कैसे उसकी इमेज खराब की जाए। यहाँ पर ये कश्मीर में तो जहाँ वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए सबमिट होने वाली थी, मैं भी गया था इसके पहले 337 घोषणा से पहले, तो तैयारी थी कि वहां पर इकोनॉमिक सबमिट होगा और लोग आकर के इन्वेस्टर्स आएंगे। लेकिन हुआ क्या कि उसको कैसे गड़बड़ किया जाए कि साहब कश्मीर तो कोई जाएगा, तो हम गए किसी इलाके में बम विस्फोट, तो वो तो क्या लंदन में नहीं होता है, क्या अमेरिका में नहीं होता, कहीं फ्रांस में तो कितनी घटनाएं हुई है। तो ये कहना कि उसको हवा बना दिया था कि कश्मीर जाए नहीं आदमी, वो जो है उत्तर प्रदेश जाए नहीं, वो वाराणसी यदि अच्छा बढ़ रहा है तो वाराणसी भी न जाए, लोग जाते सारनाथ जाने वाले हैं तो उसको भी न जाए कि वहां तो लाशें बहती रहती है। तो देखिए ये परसेप्शन बनाना, मेरा इसीलिए आपत्ति है कि ऐसी चीजों के बारे में, और इस डिजिटल मीडिया आने के बाद आईटी के जो रूल्स हैं उनको और अच्छे ढंग से करके सही तथ्य को जाने दीजिए। भाई जहां अस्पतालों में सुविधा नहीं है उसके बारे में दीजिए लोग। और पत्रकारिता का ये फॉर्म है, ये मैंने नियम रहा है कि लाशों को नहीं दिखाते, चूंकि कोई देख करके लोग कितने डिप्रेस हो रहे हैं। मैं इसलिए दर्शकों से फिर निवेदन करूंगा, इन चीजों को टेलीविजन पर रोकने की कोशिश होना चाहिए। मैं अपने परिवार बच्चे बंबई में हैं, उनको डिप्रेशन, वो देख करके उनको डर लगने लगा, स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो सोचते हैं कि आगे पता नहीं हम किससे बात करेंगे, नरसिंह राव जी मिल जाएंगे तो पता नहीं मुझे लग तो नहीं जाएगा ये, या लास्ट तो नहीं हो जाएगी, अरे हमारे नाना जी वापस चले गए दिल्ली, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ये जो खतरा हो गया है, ये परसेप्शन देश के लिए और आगे के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक है। और इसलिए दुनिया में नहीं दिखा जाता, वहां पर पोर्नो पर भी जर्मनी में 11 बजे पहले आप कोई ऐसी कोई फिल्म नहीं दिखा सकते। भारत में आप चाहे 6 बजे दिखाइए, जो चाहे करिए, वहां पर कोई रोक ही नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि इन सब चीजों के बारे में एक बड़े कड़ाई से, जैसे 370 खत्म किया गया, मेरा तो ऐसा माना, लोग कहते हैं मेरे खिलाफ बड़े काफी मुझे बीच में गालियां पड़ी थी जब मैंने कहा था कि कुछ समय के लिए ये सब, इस पर भी कुछ अंकुश होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा था कि मीडिया बंद कर दिया जाए। मैंने एक छोटा सा ट्वीट रात को, जब मैं भी बहुत डिप्रेशन में था, तो मैंने कहा कि कुछ हद तक ऐसा हो कि ये चीजों पर, भाई ये चीज मत दिखाइए, लाशें मत दिखाइए, कुछ अचानक इतने लाख लोग मर गए, पहले ये तो दिखाई जो बच गए, इतने करोड़ बच गए, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। दूसरे देशों में हमसे कई गुना ज्यादा मर गए, उसकी चर्चा भी नहीं होगी, खाली भारत में मरने की बताई जाएगी। टूल किट के हिसाब से, टूल किट के तहत ये किया जा रहा था। पर देखिए एक पत्रकार है और जो जिन्होंने पत्रकारिता में अपनी पूरी जिंदगी बिताई है, उनके मुख से आप ये सारी चीजें सुन रहे हैं। तो आखिरी शब्द पर मैं सुनील देवधर जी आपको देना चाहूंगा कि एक बात जिसका जिक्र आलोक जी भी कर रहे थे कि किस तरीके से इंदिरा गांधी जी के जमाने में ज्ञानी जेल सिंह के ऊपर भी स्नूपिंग कराई जाती थी, इसका जिक्र मलॉयधर ने भी, आईबी अफसर ने भी अपनी किताब में किया है। तो आखिरी शब्द सुनील जी आपसे जानना चाहूंगा कि अब आगे का रास्ता इसमें से कैसे निकलेगा? क्या कल भी पार्लियामेंट में पूरे पेगासस को लेकर ही पार्लियामेंट को एक तरीके से अखाड़ा बनाया जाएगा, या इसमें सरकार की तरफ से कोई पहल की जाएगी या करनी चाहिए, या ये प्रोपेगेंडा तब तक फैलाया जाएगा जब तक कि एक भारत की छवि जो अंतर्राष्ट्रीय समाज में है वो पूरी तरह से इस मामले पर धूमिल ना हो जाए? किस तरीके से अब इस पे आगे का रास्ता निकलेगा? देखिए, आगे का रास्ता सरकार के बारे में बोलने वाला मैं कोई ऑथराइज्ड व्यक्ति हूं नहीं।
थोड़ा बहुत जीवीएल नरसिम्हा राव जी चूंकि राज्यसभा के सांसद है, वो इसके बारे में बोल सकते हैं। लेकिन देखिए, सोने वाले को आप उठा सकते हैं, सोने का नाटक करने वाले को आप उठा नहीं सकते। और इन्होंने जो है सोने का ड्रामा किया हुआ है, और इसलिए इनको उठाने का कोई फायदा नहीं है। ये नहीं चाहते कि इस देश में विकास हो, ये नहीं चाहते कि इस देश में पुराने हजारों कानून जो बेवजह के थे, जो विकास की रास्ते में बाधा बने हुए थे, ऐसे कानून खत्म हो, ऐसे कानून अमेंड हो। वो नहीं चाहते कि इस देश में नए कानून बने जिससे इस देश के सभी प्रकार के लोगों को राहत मिले, रोजगार मिले। ये लोग नहीं चाहते। ये लोग नहीं चाहते कि पार्लियामेंट चले और पार्लियामेंट इनकी चलेगी तो इनके दुकान बंद हो। देखिए, जो व्यक्ति भ्रष्ट है उसको मोदी से कष्ट है, ये एकदम सत्य है। और इसलिए ये सारे लोग, जो मैंने आपको कहा ना कि मोदी ने जो पेस्ट कंट्रोल चालू कर दिया है, और अभी पूरी बहुमत के साथ दूसरी बार आने के बाद और ज्यादा तेजी से पेस्ट कंट्रोल चल रहा है, इसके कारण ये जो दवा डाली जा रही है जगह जगह पर, तो ये सारे बिलबिलाकर बाहर निकल रहे हैं। और ये लोग कष्ट के कारण जो है ये सारा चिलचिलाहट इनकी जो चल रही है, ये तो चलेगी। हमें इसके साथ डील करना होगा, बड़े कड़ाई से डील करना होगा। और मुझे पूरा भरोसा है ये सरकार जो है, ये सरकार इसको ठीक तरह से डील करेगी। और ये सब कानूनी बातें जो वो करते, जो बिल्कुल सही कहा कि कानून की बात करते हैं, न्यायिक जांच की बात करते हैं, कमेटी की बात करते हैं, और बाद में रिपोर्ट आता है तो उस रिपोर्ट को जो है वो ठुकरा देते हैं। तो मतलब ये सिर्फ टाइम निकालने की चीज है, कैसे भी करके समय निकलता जाए, लोगों को भ्रमित हम करते रहे, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। शहजाद भाई, आपने बहुत बढ़िया आज टॉपिक लिया, और इस टॉपिक के माध्यम से पेगासस का जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, इन झूठे लोगों ने, मक्कार लोगों ने, जालसाज लोगों ने जो एक प्रोजेक्ट लिया, और इस प्रोजेक्ट की धज्जियां उड़ाने का काम जो इन दिनों में हुआ है। अमित मालवीय जी ने जिस तरह से ट्वीट करके कहा था कि फोन हैक हुए क्या तो मालूम नहीं, पक्की जानकारी नहीं है, किसी ने ऑर्डर किया था, किसने ऑर्डर किया था, ये तो हमको कोई आइडिया नहीं है। ये कोई फोन नंबर की लिस्ट कहां से आ गई तो इसका सोर्स भी हमको पता नहीं है। ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज जो है, इसका कोई एविडेंस है, कोई सजेस्ट किसने, इसके पीछे कौन है, तो इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये सारा जो है एक बना बनाया एक ड्रामा है, मोदी को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए। और ये ड्रामा विफल होके रहेगा, मुझे पूरा भरोसा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद भाई, आज आपने इतना सुंदर शो अरेंज किया है। और मैं दोनों साथी जो जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आप हमेशा आते रहिए, और मेहता जी आप भी बार बार आते रहिए, और लोगों को अपना जो पुराना अनुभव है उस अनुभव से आलोकित करते रहिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, जीवीएल राव साहब आपका, आलोक मेहता जी, और हमेशा की तरह सुनील देवधर जी आपका। और सवाल सिर्फ इतना है कि राष्ट्र हित में क्यों बार बार आप सवाल खड़े करते हो, पर वो आपके राष्ट्र के नहीं बल्कि आपके परिवार के हित के ज्यादा दिखाई देते हैं। उम्मीद है कि पार्लियामेंट को चलने दिया जाएगा और पार्लियामेंट को कम से कम हैक नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय।